اس حوالے سے جو ریلی کا آپ نے ذکر کیا، اگر ہندوستان والے آئے تو کیا بنے گے؟ تو 2-4 بندوں کو نہیں سنبھال سکے. اسی لیے میں نے یہ بات کی کہ ہم بحیثیت قوم 6 ستمبر کو سال میں ایک بار مناتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری فوج جو ہے اس کے لیے آج کل جب سے یہ پی ٹی آئی جیسی جماعتیں بنی ہیں اور شہباز گل جیسے چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں، عمران خان کا چیف آف آرمی سٹاف، تو پاکستانی فوج کے لیے ہر دن یوم دفاع ہے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں نا، ان کو میرا اتنا ہی پیغام ہے کہ شہباز گل صاحب، انڈیا کی فوج میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنا جہاز ہمارے بارڈر کے قریب بھی کہیں اڑا کے دکھائیں. لیکن یہ آپ لوگ ہیں جو پاکستان کا جھنڈا اوڑھ کر اب پاکستان کی سالمیت پر حملے کرتے تھے، اور آپ آج بھی کر رہے ہیں. ادھر تو آپ کو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، آج پھر آپ بڑی لمبی لمبی تقریر کر رہے ہیں. تم وہی ہو نا جو کہتے تھے کہ رندہ پھیریں گے. رندہ پھیرنے والے تمہیں ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، تمہارا صبر کتنا مضبوط ہے، تم کس طرح خود کو جٹ پنجابی کہتے تھے، تم کیا چیز ہو وہ سب ہمیں پتہ لگ گیا. عمران کے پاس ساری کی ساری جو ٹیم تھی، یہ فلمی گنڈاسے والے، یہ مصطفیٰ قریشی، یہ سلطان راہی کے ڈائلاگوں والے لوگ تھے، یہ اللہ تللے ادھر ادھر سے مانگے تانگے کے لوگ تھے. سب کے سب ان میں کوئی ایک پروفیشنل پولیٹیشین نہیں تھا، کوئی اس میں ایک پولیٹیکل سٹرگلر نہیں تھا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں تھا. سب کے سب سرکس ڈرامے تھے، اور یہ یہی ڈرامے کرتے رہے اور اسی میں انہوں نے اپنا وقت گزار دیا. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا یہ محب وطن ہے. 9 مئی میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جو دن تھا یہ بالکل ایگزیکٹ ایسا ہی تھا جیسے کسی دشمن نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہو، جو جنا ہاؤس میں گھس کر اس کو آگ لگا دیں، جو جی ایچ کیو کے گیٹ کے بیجز اتار کر اس پہ لاتے ماریں، جو ریڈیو پاکستان میں گھس کر وہاں پر لوگوں سمیت جو اس میں کارکن تھے ان سمیت اس پہ پیٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دیں، جو کرنل شیر جیسے قومی ہیرو کے مجسمے کو توڑ کر اس کو پٹخ پٹخ کر زمین پر ماریں. تو ایسے لوگ کبھی آپ کے یہ محب وطن نہیں ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں نہیں. ہم تو بہت پہلے کہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اسرائیلی فنڈڈ پارٹی ہے، ان کو انڈیا سے پیسے ملتے ہیں، ان کو اسرائیل سے پیسے ملتے ہیں، پاکستان کے جتنے دشمن ممالک ہیں وہاں سے انہوں نے پیسے پکڑے تھے. یہ فارن فنڈنگ کیس تھا کیا؟ یہی تھا کہ انہوں نے پیسے پکڑے تھے اور ان کا جو مین گول تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. آپ نے دیکھا نہیں جاتے وقت عمران خان یہی بولا تھا نا کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. پروگرام ان کا یہی تھا، انہوں نے ملک کو توڑنا تھا. پتہ ہے کیا پرویز بھائی، جی خیبر پختونخوا کو انہوں نے یہاں پر لوگوں میں یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ خیبر پختونخوا کا جو پاک افغان بارڈر ہے یہ اس کو بارڈر نہیں سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیورنٹ لائن ہے. یہ ڈیورنٹ لائن کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدات ہے اس کو نہیں مانتے ہیں، اور کہتے تھے کہ بارڈر کے اس طرف بھی پشتون ہے، بارڈر کے اس طرف بھی پشتون ہے، تو ان کے بیچ میں بارڈر کی کیا ضرورت ہے. میرا سوال ان سے ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ بارڈر کے اس پار بھی اردو بولنے والے پنجابی ہیں، بارڈر کے اس پار بھی اردو بولنے والے پنجابی ہیں، تو پھر تو یہ بارڈر بھی گیا، وہ بارڈر بھی گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کے جو اس کا نقشہ ہے، جو اس کے نظریاتی سرحدات ہیں، جو اس کے جغرافیائی سرحدات ہیں، آپ تو ان سے منکر ہیں، آپ تو اس سے باغی ہیں. تو جو لوگ پاکستان کی جغرافیے سے، اس کی سرحدات سے، اس کی بنیادی اساس کے باغی ہوں، ان لوگوں پہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں کہتا ہوں آہنی ہاتھوں سے ان کو نمٹنا چاہیے، اینڈ کوئی مرسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے. جیسے ان کو میرے خیال میں نشان عبرت بنا دے تو یہ بہتر ہوگا، تاکہ پھر کوئی پاکستان کے وجود کو، پاکستان کی بنیادی اساس کو
میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوئی جرت نہ کر سکے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہو تو آنے والے وقت میں کئی عمران خان اور شہباز گل اٹھ کر اس سے بھی زیادہ بری اور گندی حرکتیں کر سکتے ہیں. چلیں سر کے پی کے میں ذرا واپس چلتے ہیں. 2 ادوار گزرے 10 سال. اگر دونوں ادوار میں موازنہ کیا جائے تو میں زیادہ اچھا تو نہیں پوچھتا, لیکن مطلب زیادہ تباہی کس دور میں ہوئی, خٹک صاحب کے دور میں یا محمود خان صاحب کے دور میں؟ اب مشکل سوال کریں نا آپ سے, اب آپ کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا یار کہ مطلب کہ پتہ لگے نا آپ کو. مشکل تو ہے ہی نہیں. آپ کے سوال پر جو مجھے جواب فوراً میرے ذہن میں آیا تو پتہ ہے وہ کیا تھا؟ جی جو میرے ذہن میں ابرپٹلی آیا کہ پرویز بھائی 2 تینی بھی 6 ہوتا ہے اور 3 دنی بھی 6 ہوتا ہے. یعنی کان اچھا ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے, پکڑنا کان ہی ہے. ایک کوئی گل ہے جی, ایک کوئی گل ہے, سارا معاملہ ایک کوئی جیسا ہے. یہ پرویز خٹک نے بنیاد رکھی تھی کس چیز کی؟ کرپشن کی. پرویز خٹک نے بنیاد رکھی تھی کہ ملکی خزانہ کس طرح لوٹتے ہیں, ملکی وسائل کو کیسے لوٹا جاتا ہے. پرویز خٹک نے بنیاد رکھی تھی کہ کوئی اگر کرپٹ نہیں ہے, اس نے کرپشن کبھی کی نہیں ہے یا اس کو کرپشن کرنی نہیں ہے, تو اس کو کیسے کرپٹ بنایا جا سکتا ہے. اس نے عمران خان اگر وہ چھپا کرپٹ تھا تو اس کو کھلا کرپٹ بنا دیا. اپنے خیبر پختونخوا کے میوزیم کے مورتیاں اٹھا کر اربوں روپے کی وہ بنی گالا پہنچائی ہیں. یہاں کے سرکاری خزانے سے ان کے گھر میں ڈیزل پھینکا جاتا تھا کہ ان کا جنریٹر چلتا رہے, ان کا کچن چلایا جاتا تھا, ان کی ویٹ لینڈ کروزرز چلتی تھی, ان کی مرسڈیز چلتی تھی. سرکاری ہیلی کاپٹر دے کر اس کو کس طرح اڑایا جاتا ہے. یہ چیزیں پرویز خٹک اس کا جو تھا ان چیزوں کا موجد تھا. پرویز خٹک نے یہ فارمولا دیا کہ ایک پروجیکٹ بناتے ہیں. آپ عمران خان نے تو بولا تھا شروع میں کہ مجھے بی آر ٹی اگر شہباز شریف بنائے گا تو میں اس کی مخالفت کروں گا کے پی میں اس کے آگے لیٹ جاؤں گا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جی کلپ. جی جی پرویز خٹک نے اس کو بولا کہ اس میں بڑا مال ہے, یہ بناتے ہیں اور آپ دیکھنا کہ پھر ہوتا کیا ہے. تو ہوا کیا, اب اس کیس میں جو پرویز خٹک کے ادھر اٹکا ہوا ہے, اس نے 15 ارب روپے کی کک بیک اس نے وصول کی ہے ملیشیا میں. 10 ارب روپے کی کک بیکس کمیشن انہوں نے وصول کیے ہے دبئی میں. اس میں وہاں پہ انہوں نے ٹاورز لے لیا اور پراپرٹی لی ہے. اور یہ بات میں ان کو ٹی وی پہ کہتا ہوں, میں اخباروں میں کہہ چکا ہوں, میں اسمبلی فلور پہ کہہ چکا ہوں, یہ میں ان کو جلسوں میں تقریروں میں کہتا ہوں. مجھے وہ سوئی نہیں کرتا. کرو نا, میں پھر تمہیں بلڈنگ بھی دکھا دوں گا, میرے پاس اس سے بھی آگے ڈاکومنٹس ہیں. اچھا محمود خان آیا ہے تو وہ پھر اس نے اس کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا, اور جو کرپشن کی اس نے بنیاد رکھی تھی وہ اس دیوار کو اور اس بلڈنگ کو بہت اونچا لے کے چلا گیا. اور جب اینڈ میں وہ جا رہے تھے 2013 میں یہ صوبہ خیبر پختونخوا, یہ ٹوٹل 33 ارب روپے کا مقروض تھا. اس پہ 33 ارب روپے کا مطلب یہ جسٹ نارمل. لیکن جب یہ گئے ہیں, آج خیبر پختونخوا بحیثیت صوبہ اپنے تئیں 1000 ارب روپے کا مقروض ہے. پوری سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی جو امریکہ میں بیٹھ کر 400 لوگوں کی ٹیم ہے, جس میں موسٹلی لوگ انڈیا کے پیڈ لوگ ہیں, ان کو تنخواہ دی جاتی ہے, امریکہ سے بیٹھ کر وہ چلاتے ہیں, ان سب کو یہاں سے تنخواہ جاتی تھی خیبر پختونخوا کے خزانے سے. اور یہاں پر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے نام سے لوگوں کو بھرتی کر کے ان کو 35,000 روپے ماہوار تنخواہ دی جاتی تھی کہ آپ کے پاس بیانی آئے گا, نیریٹو آئے گا, سٹف آئے گا, آپ نے اس کو آگے پھیلانا ہے, چلاتے رہو. گھر کے چراغ سے ہی آگ لگائی گئی. پیسہ سرکاری, لوکل لوگ پاکستانی, ایندھن بنے کس کے؟ انڈیا کے ایجنڈے کے. ایندھن بنے اسرائیلی ایجنڈے کے. پاکستان کے تمام دشمن ملکوں کے ایجنڈے کے وہ ایندھن بنے ہیں اور اس ملک کو آگ لگائی گئی. This is what I can present my Khyber Pakhtunkhwa unfortunately in front of you and all of your viewers. تو یہ ساری سچویشن ہے.
आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कल हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने दूसरा खत लिखा है। पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को लिखा था और कल उन्होंने निगरान वजीर आजम काकड़ साहब को लिखा है कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियां कोलैप्स हो रही हैं, हमारे अस्पताल वो कोलैप्स हो रहे हैं, स्टाफ की तनख्वाहें ना अस्पतालों की मौजूद है ना यूनिवर्सिटीज की मौजूद है। ऐसे हालात हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा है। और जो कहते थे, अब आप अंदाजा लगाएं, जो कहते होते थे कि वी आर हेयर, कि हमने कोई नया पख्तूनख्वा बना लिया है, अब हम नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, अब हम इनकलाब लाएंगे, हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, दो नहीं एक पाकिस्तान। ऐसे ऐसे नारे, जितने खूबसूरत नारे हो सकते थे, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, दोहरा निजाम तालीम का खात्मा, दोहरा निजाम इंसाफ का खात्मा, और एंड रिजल्ट ये है। एंड रिजल्ट ये है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब तो तमाम वो किरदार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने केपी के वहां पर फ्रंट पे आकर तबाह किया, आपने सारे का सारा जिक्र जो है वो शुरू किया खटक साहब ने, और उसका जो अखीर है एंड किया वो महमूद खान साहब ने। अब तो वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है, इमरान खान के खिलाफ हैं, बल्कि वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने कैसे तबाह की हर चीज। वो तो कह रहे हैं कि हम बरील जुम्मे हैं, हमारे तो जुम्मे कुछ भी नहीं है, जो किया इमरान खान ने किया। ये बात उनकी केपीके की अवाम बात मान लेगी, बिलीव करेगी, ट्रस्ट करेगी, वोट देगी उनको? नेवर, नोबडी इज एक्सेप्टिंग दिस बयानिया। उनका उनका ये जो लेम एक्सक्यूज है, ये कोई नहीं। मैं समझता हूं कि इमरान खान जाती तौर पर करप्ट था, लेकिन वो छुपा हुआ था। इमरान को परवेज खटक ने बाकायदा रजिस्टर्ड करप्ट बना दिया है, एक सनद याफ्ता करप्ट बना दिया है। इसमें परवेज खटक का बहुत बड़ा हाथ है। परवेज खटक को अपने हलके में सूबाई क्या तो कौमी क्या, उनको अपनी जमानत की फिक्र है आजकल कि उसकी जमानत कैसे बचेगी। जिसने सूबे के लोगों को, मतलब मैं कोई मरीख से तो नहीं बात कर रहा हूँ ना, मैं जमीन पर रहने वाला बंदा हूँ, जमीन पर रहता हूँ, और जमीनी लोगों से, जो आम लोग हैं, उनके साथ मेरा वास्ता है। मैं उनसे उठता बैठता हूँ, उनकी फीडबैक आपको बता रहा हूँ। आप अंदाजा करें इससे, परवेज भाई के सवात का एक कसाई था, वो 2013 में वो बन गया, एमपीए बन गया। उसके पास स्वाद से आने के लिए किराया नहीं था, और इसकी छोटी सी दुकान थी गोश्त की। अच्छा जी। जी, लास्ट उसने जब अपने असासे डिक्लेयर किए हैं, वो 20 अरब रुपए से तजावज कर गए हैं। एक कसाई जो 2013 में बता रहे हैं आप? जी, 18 में? अच्छा, 2013 में 13 में। हाँ आने के लिए किराया भी नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतहब हुए थे वो। जी, और वो 20 अरब रुपए के उसने असासे डिक्लेयर किए हैं। आप अंदाजा करें कि उसके अनडिक्लेयर्ड असासे कितने होंगे। यहां पर ऐसे वजीर बने हैं 2 बार, 2013 में, 2018 में। उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स बना लिए, उन्होंने अपनी फार्मेसीज बना ली हैं। 2 वजीरों ने पेशावर का पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल ले लिया है, उसको सरीना में कन्वर्ट कर दिया। दुनिया जहान का कोई भी, मतलब आप नाम उठाएं प्रॉपर्टी का, कारोबार का, वो इन्होंने कैप्चर कर लिया। आपको पता है, मैं आज आपको एक और मजे का लतीफा सुनाऊं। जी। 15 साल का 15 साल की लीज पर पेशावर बीआरटी की बसों को लिया गया है कि 15 साल बाद जिस कंपनी से ये खरीदे गए हैं, एक जी। तो उसकी कीमत रखी गई है 10 रुपए की बजाय 100 रुपए, एक एक बस की कीमत है। ठीक। किकबैक्स की, आपको कमीशन की समझ आ रही है ना। जी 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 जी। अब 15 साल बाद वही बस महज 300 रुपए के एवज, 300 रुपए के एवज एक बस बीआरटी पेशावर की, ये उस कंपनी को वापस चली जाएगी। 10 रुपए एक वाली बस 100 रुपए में खरीदी है, और 15 साल के बाद 300 रुपए वापस ले जाएगी। पाक रुपीज 300। जी।
ये अच्छा, उसकी पाकिस्तानी 30 रुपए में वो वापस चली जाएगी। जी जी मतलब खटारा भी वो ले जाएंगे 15 साल के बाद, वो भी हमारा नहीं है। ना, खटारा हो या ना हो, मतलब उसका स्क्रैप भी आप बेचें तो वो जी कितने का होगा? वो जी जी। 300 रुपए के बदले वो उस कंपनी को वापस चली जाएगी। और ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। कमाल है, कमाल है। कैसे पढ़े लिखे। अच्छा, आपको पता है ये जो 2 दिन पहले, मैं आपकी बात में लुकमा दे रहा हूँ, माफी चाहता हूँ उसके लिए, ये 2 दिन पहले आर्मी चीफ की गुफ्तगू कुछ बिजनेसमैनों ने बाहर आकर की है, उसमें उन्होंने बल्कि नाम लेके कहा गया है कि आपके दोनों वज़ीर आला का आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब ने नाम लेकर कहा है कि ये महमूद खान और परवेज खट्टर क्या थे जो आज अरबों खरबीपति बन गए हैं करप्शन में, उन्होंने भी जिक्र किया है। जी, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पर ये इल्ज़ाम लग रहा था कि शायद परवेज़ खट्टक को पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट मिली हुई है हम्म और महमूद खान को सपोर्ट मिली हुई है कि ये लोग धुल गए हैं आर्मी की लॉन्ड्री में और ये लोग दोबारा हुकूमत में आ जाएँगे या हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएँगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पर कि आर्मी चीफ ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया कि ये 2 साबिक वज़राए आला इससे पहले क्या थे? इसमें तो ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे फिरते पैदल लोग थे। आज उनकी आप वेल्थ चेक करें, उनके नौकरों की आप वेल्थ चेक करें, आपके खानों नवाबों से ज़्यादा उनकी वेल्थ बन गई है। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, चलिए सर, इसको तो ये तो हो गया। अगर हम फर्ज कर लेते हैं यही 10 साल नून लीग की हुकूमत पीके में होती, तो क्या डिफरेंट होता, क्या फर्क होता है? मतलब अगर 10 साल जिस तरह इमरान खान साहब को मिले हैं, पंजाब में शहबाज शरीफ को 10 साल मिले, इसी तरह अगर केपीके में 10 साल नून लीग को मिल जाते तो? देखिए परवेज़ भाई, सिंस मैं एक तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ और दूसरा मैं केपीके का रहने वाला हूँ। जी। मैं इस बात पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तो यहाँ पर नई यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, हम्म नए तालीमी इदारे बनेंगे। हमारा सूबा इस वक़्त टोटल 3 अस्पतालों पे चल रहा है, 3-4 बड़े अस्पताल हैं। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। नवाज़ शरीफ का विज़न यही है कि वो हमें नए अस्पताल बना कर देगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ठीक करके देगा। ये जो इन्होंने गंद बनाया है बीआरटी का, वो मज़े की बीआरटी बनती, मेट्रो बनता यहाँ पर। हमारा एयरपोर्ट जो है, वो उसकी रिहैबिलिटेशन होगी। हम समझते हैं कि यहाँ पर पीने का साफ पानी लोगों को मिलेगा। हम ये समझते हैं कि यहाँ पर नए स्कूल बनेंगे। हम ये समझते हैं कि जो कबायली अवाम हैं, जो आपके नए अज़ला मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर अमन आएगा और उन लोगों की पहली और आखिरी जो उनकी डिमांड है, वो अमन ही है। वहाँ पे लोग तालीम चाहते हैं, वहाँ पे लोग अस्पताल चाहते हैं। ये उनकी बेसिक डिमांड्स हैं। मैं तो जाता रहता हूँ, उनका मुतालिबा यही होता है कि हमें अस्पताल दें, हमें स्कूल दें, कॉलेजेस दें, यूनिवर्सिटीज़ दें, रोड्स दें, पुल बना के दें, यहाँ पर ठीक। इसको डेवलप करें। ये इनका बुनियादी हक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि इट्स अ टूरिस्ट प्रोविंस। ट्रू। यहाँ पर आप स्वात ले लें, चित्राल ले लें, ये डेवलप होता। आप देखें ना, ये नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे चेक करें। ये जो हमारा मानसेरा है, मानसेरा से आगे बालाकोट, कागान, बाबूसर, टाप, ये रोड किसने बनाए हैं? ये नवाज शरीफ के बनाए हुए रोड्स हैं। ट्रू। ये नथिया गली की सड़क मरी की तरफ से जब आते हैं या आप एबटाबाद की तरफ से जाते हैं, ये नवाज शरीफ का कारनामा है। ये डुअल कैरिज वे जो है, मरी इस्लामाबाद डुअल कैरिज वे, ये नवाज शरीफ का कारनामा है। वो तो ऐसी चीजों को डेवलप करता है कि आपके शहर आबाद हो, आपके टूरिस्टों के लिए रास्ते खुले, आपकी जो है वो जनरेशन हो, रेवेन्यू आपका जनरेट हो, वो तो लोगों का सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि 2 टर्म मिले हैं खैबर पख्तूनख्वा में इन नालायकों को और उसने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ 40 साल वो पीछे लेकर चले गए हैं। लेकिन मैं अब भी नाउमीद नहीं हूँ, मैं पुरुमीद हूँ।
अब जिस तरह मरियम बीवी ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, मैं उनका ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ। मैं गुज़श्ता 2 सालों से उनके साथ यही बात करता था कि हमें सबसे पहले नौजवानों को मोड़ कर लाना है, जिनको मिसयूज़ किया। इमरान खान ने अपने मैलिफाइड और अपने शैतानी इंटेंशंस के लिए नौजवानों को इस्तेमाल किया। हमें मुल्क के नौजवानों को वापस लाना है और सबसे पहले आपको खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को मोड़ कर लाना है। मैं ये टास्क उनको दे रहा था, उन्होंने वो टास्क मुझे ही दे दिया। अब हम मिल के काम कर रहे हैं। वो आती हैं, पूछती हैं, इंटरेस्ट लेती हैं। मैं उनका मशकूर हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने के अरसे में हमने खैबर पख्तूनख्वा के 7 डिविजन्स मैं की मुझे 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 कैबिनेट। जरा मुझे जरा ये एक पूरा एक सेगमेंट है इसका आखिर में रखा हुआ मैंने, अगर मुझे माफी दें, अच्छा, इजाजत दें तो मैं चाहता ठीक नहीं हूँ कि ये ठीक चीजें मिक्स हो जाए। मैं जरा इसको, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट है, मैं देख रहा हूँ बड़ी ठीक चीजें ठीक जो नजर आए तो मैं चाहता हूँ कि वो जरा एंड में कर लें, इजाजत दें तो। अच्छा, आपके कुछ जाती हमने पिछले दिनों देखे सोशल मीडिया पे कुछ लड़ाई झगड़े आपके अक्सर हो जाते हैं, असेंबली में हो या कहीं और, मतलब लड़ाई झगड़ा को लफ्ज शायद मुनासिब ना हो लेकिन आप भिड़ जाते हैं। तो निगरान हुकूमत से कोई मसले मसाइल हो गए आपके, कोई मामला सेटल डाउन हुए हैं या चल रहे हैं अभी? वो ऐसा था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर साहब हैं, तो उन्होंने गवर्नर हाउस को सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना दिया था। अच्छा जी। ट्रांसफर, पोस्टिंग्स, वजीरों का होना ना होना, अपॉइंट करना, फायर करना, हायर करना, वो सारा कुछ गवर्नर साहब कर रहे थे। पंजाब की गोगी बन गए थे, वो जो पंजाब में एक गोगी थी जो करवाती थी सारा कुछ। शायद आप कह लें। मैंने गवर्नर साहब को बोला कि देखें, आप पीडीएम के गवर्नर हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो शायद उसका फायदा आपको हो, ठीक। लेकिन अगर आप बुरा परफॉर्म करेंगे तो उसका नुकसान हमें है। ठीक। ट्रू। उन्होंने कैबिनेट में 18 वजीर अपने बिठा दिए। हमें दिया 1 वजीर, 1 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी। यही दिए उन्होंने पीपल्स पार्टी को, यही दिए उन्होंने एएनपी को। तो मैंने इस्लामाबाद में अपनी पार्टी की जो हमारी काउंसिल की मीटिंग थी, मैंने उसमें कारकुनों सामने बैठे हो और वो नाराज हो और वो यहाँ तक कि वो अपनी क्यादत से लड़ पड़ने के लिए तैयार हो, तो हमने अपने कारकुनों को तो भी कोई जवाब तो देना होता है। तो एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे, अमीर मकाम साहब भी बैठे हुए थे। मैंने इनको बोला कि ये जो आपने हमारे सूबे पर गवर्नर राज नाफिज किया है, जरा हमारे हाथ खोल दें। हम आपको मुस्लिम लीग नून की सिंगल हैंडेड हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बनाकर दे सकते हैं। ऐसे हालात में जब पीडीएम का गवर्नर बैठा है, सिर्फ उनकी जमात का काम हो रहा है, तो फिर मुझे ये बताइए, हम अपने कारकुन की शक्ल देखेंगे, वो हमारी शक्ल देखेंगे? कल हम इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे? वहां से बात शुरू हुई। वो क्लिप मेरे पास भी आया, लेकिन मैंने सिर्फ बात करनी थी और मैंने अपनी क़ियादत को वो बात और वो शिकायत पहुंचानी थी। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कोई उसका मैं कोई किस्सा बनाऊं, उसकी कहानी बने, उसकी मशहूरी हो, उससे कोई फड्डा बने या इत्तेहाद पे कोई उस पे कोई आंच आ जाए। तो वो उससे बात मैं उसको अपलोड नहीं किया मैंने सोशल मीडिया पे भी, लेकिन लोगों के पास था, वो वायरल हुआ, फिर बहुत वायरल हुआ, फिर बात टीवी तक पहुंची। तो होते होते वो यहीं पे जाके एंड अप हो गई कि पूरी कैबिनेट फारिग हो गई। पूरी कैबिनेट फारग हो गई। क्या बात है, मतलब इख्तियार वली की ताकत जो है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी कैबिनेट भी फारग कर सकते। चले सर, अब आ जाए जरा इंतखाबात की तैयारी। और जो भी आप फरमाने लगे थे कि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा, जो कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे टीवी टॉक शो में, कि मरियम नवाज खामोश है, ट्विटर खामोश है, वो फिर वापस आई है। जब से वापस आई है, मियां साहब से मिलके कोई काम नहीं, कुछ नहीं करे। लेकिन हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि अंदर खाते मरियम नवाज डेली कहीं ना कहीं बिजी है, और उनके टाइम का बड़ा हिस्सा केपी पे बड़ा उनका फोकस है। हमें खबरें मिल रही हैं, अंदर की चीजें मिल रही है कि केपीके में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बल्कि शायद अगर ये कहा जाए कि पंजाब से भी ज्यादा काम हो रहा है तो गलत नहीं होगा। अब इसके जरा में आप फरमा दें कि क्या कर रही है मरियम नवाज और क्या प्लान है, अगर वो आप लीक कर सकते हैं ऑफिशियल, क्योंकि हो सकता है कि ना लीक करने वाली चीज भी हो, तो जो बता सकते हैं वो बताएं। इलेक्शन की तैयारियां किस तरह की जा रही हैं? परवेज भाई, मैं एक जुमले में आपको बात सारी समझा देता हूँ, वैसे मैं डिटेल आपको बताने लगा हूँ।
जी कि बोलती मरियम नवाज कितनी खतरनाक थी, आपने देखा था, बिल्कुल ठीक। अरे लेकिन काम करती हुई मरियम नवाज उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो गई है। अब वो बोलती कम है और उनका और जो एक्शन है वो ज्यादा जो है वो बोल रहा है और वो दिखाई दे रहा है और एक वो एक चीज इसमें मैं ऐड कर लूं, ये अब तारीफ ना हो जाए आपकी, सुनने वाले ये ना कहें कि आप सामने पे थे, लेकिन अगर मरियम नवाज ने केपीके में आपको निगरान बनाया है और आपसे चीजें करवा रही हैं या आपको उसका बनाया है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी कि यहाँ पे कोई रवायती सियासतदान पुत्र भरा, आप समझ रहे मैं जो कहना चाहता हूँ, वो किसी की जिम्मेदारी लेकर अगर आपकी लगाई है एक अवामी लीडर की जो परवेज खटक को हरा गया था, तो ये उनकी काबिलियत और उनके सदके दिल से जो वो काम कर रही है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए मरियम बीबी जो है उनकी काबिलियत, उनकी शुजात, बहादुरी और उनकी जो दूरंदेशी है, मेरे ख्याल में उस पे कोई इबाम नहीं है, उस पे कोई शक नहीं है। और मैं तो एक कारकुन हूँ जमात का, मुझे तो इसी पे फख्र है। और फिर उससे ज़्यादा फख्र मुझे इस बात पर है कि मैं नवाज शरीफ का 33 साल से कारकुन हूँ। ना मैं मुशर्रफ लीग में गया, ना कोई जेल, ना कोई तशद्दुद, ना हथकड़ी, नाखून निकालना, खून बहाना, सारी चीज़ों से निकल गए। लेकिन नवाज शरीफ की मोहब्बत और उनकी इज्जत और उनके साथ वफा का जो सफ़र है, उस पे कभी आँच, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, न कभी आया और इंशाल्लाह ना कभी आएगा। लेकिन उससे भी बढ़कर मैं आपको ये बताऊं कि मरियम नवाज की टीम में रहकर काम करने का जो मजा है, जो स्वाद है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो दिन रात काम करती है,